بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس پری 9 سبجیکٹ انگلش یونٹ نمبر 3۔ یونٹ نمبر 3 ہے بیٹا میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ۔ میڈیا یعنی کہ ذرائع ابلاغ، اینڈ کا مطلب ہے اور، اٹس کا مطلب ہے اس کے یا اس کا، امپیکٹ کا مطلب ہے اثرات۔ میڈیا اور اس کے اثرات، میڈیا اور اس کے اثرات۔ بیٹا آج ہم نے یونٹ نمبر 3 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ اس کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بیٹا لیسن کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ذرائع ابلاغ کا کردار اور اس کا اثر، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں۔ بیٹا ذرائع ابلاغ باہمی اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے، یہ خبریں اور تجزیے پیش کرتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگ آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ معلومات دینے کے علاوہ یہ ہمیں بہت سے پرلطف اور سنسنی خیز پروگراموں کے ذریعے تفریح فراہم کرتا ہے۔ اسے عام طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ الیکٹرونک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا۔ اوکے، یہ ذرائع ابلاغ کی بدولت ہی وہ ہے کہ آج دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے۔ یہ ہمیں گہرے سمندروں کے پار ہزاروں میل دور رونما ہونے والے تمام اہم واقعات سے متعلق معلومات دیتا ہے۔ اگر یہ اصلاحی کردار ادا کرے تو یہ بہت سود مند ثابت ہوگا۔ یہ سماجی اور سیاسی معاملات کے بارے میں بھی ہماری آگاہی کو بڑھاتا ہے۔ مظلوم اور بے یار و مددگار لوگ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے ہر معاملے پر آنکھ رکھتا ہے۔ یہ خبروں، بحثوں مباحثوں اور گفتگو کے پروگراموں کے ذریعے معلومات فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا ہماری زندگی میں ذرائع ابلاغ اہم ہے، کتنا اہم ہے؟ آج کل ذرائع ابلاغ ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے نعمت ثابت ہوا ہے۔ یہ عوام میں ہر طرح کی آگاہی بڑھاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں اس سے متعلق معلومات دیتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا ذرائع ابلاغ کا منفی اثر بھی ہے۔ منفی اثر یا اس کا منفی کردار کیا ہے؟ بیٹا ذرائع ابلاغ لوگوں کے سوچنے اور کام کرنے کے طریقہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہیجان اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے یہ کسی صورتحال کی مبالغہ آرائی یعنی کہ ایگزیجریشن، یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کے بھی کرتا ہے۔ اس طرح یہ عوام کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اوکے، تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کریں گے۔ جی تمام بچے اٹینٹو ہو کے سنیں جی اس کو۔ مس عائشہ از دا فیوریٹ ٹیچر آف کلاس IX مین 9th۔ اوکے، مس عائشہ از، اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے، یہاں ہم کریں گے ہیں رسپیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مس عائشہ ہیں از دا فیوریٹ کا مطلب بیٹا مقبول یا پسندیدہ، ٹیچر کا مطلب ہے استانی، آف کا مطلب ہے کی، کلاس کی 9th یعنی کہ 9th جماعت کی۔ اوکے بیٹا، مس عائشہ جماعت 9th کی پسندیدہ استانی ہے۔ مس عائشہ 9th جماعت کی پسندیدہ یا مقبول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مقبول استانی ہے۔ The students eagerly attend her class۔ The students بیٹا طلبہ، ایگرلی کا مطلب ہے بڑے شوق سے، اٹینڈ کا مطلب بیٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں یا حاضر رہتی ہیں۔ اٹینڈ کا مطلب ہے پڑھتے، یعنی کہ پڑھتے ہیں یا حاضر رہتی ہیں ہر کلاس، ان کی کلاس میں یا اس کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ رسپیکٹ کے لیے ہم کریں گے ان کی کلاس۔ اوکے، اب آپ محاورہ سنیں۔ طلبہ بڑے شوق سے ان کی کلاس میں پڑھتے ہیں،
तलबा बड़े शौक से उनकी क्लास में पढ़ते हैं या तालबात शौक से उनकी जमात में हाजिर रहती हैं। ओके, दोनों सेंस में आप कर सकते हैं। ओके, कि लड़कियां हैं या लड़के हैं। ओके, फिर सुन ले बेटा, तलबा बड़े शौक से उनकी क्लास में पढ़ते हैं या हाजिर रहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? टेंस की अगर हम बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अटेंड का मतलब है हाजिर रहना, यस का मतलब है पढ़ना। ओके, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। ओके, और ईगरली बेटा एडवर्ब है। एडवर्ब देखे ना, यानी कि पढ़ती हैं, किस तरह पढ़ती है? शौक से पढ़ती है। अब शौक ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, ये एडवर्ब है। पढ़ती है शौक से, जिस तरह हम कहते हैं जी वो चल रही है, फिर हम कहते हैं वो आहिस्ता चल रही है, तो आहिस्ता फिर वो चलने के मीनिंग में उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि किस तरह चल रही है, वो आहिस्ता चल रही है या तेज चल रही है, तो ये एडवर्ब है, ईगरली एडवर्ब है। ओके बेटा, द कौन सा आर्टिकल है बेटा? डेफिनेट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? डेफिनेट। हर क्या बेटा? प्रोनाउन। ओके ओके। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल। मिस आयशा एंटर्स, एंटर होता है बेटा दाखिल होना, एंटर्स दाखिल होती हैं। मिस आयशा दाखिल होती हैं द क्लासरूम कमरा जमात में, विद के साथ हर, अपनी के साथ, यूजुअल का मतलब है मामूल की, स्माइल का मतलब है मुस्कुराहट। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स सलाम दुआ लेती है। द स्टूडेंट्स तलबा से सलाम दुआ लेती हैं। एंड टेक्स और लगाती हैं द रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब बेटा अटेंडेंस यानी कि हाजिरी, और हाजिरी लगाती है। ओके, मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तलबा से सलाम दुआ लेती हैं और हाजिरी लगाती हैं। बेटा जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जमा था तो वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होता ना, यहाँ पे नहीं हुआ। अब मिस आयशा यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का यानी कि एस का इजाफा हुआ है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेक्स यानी कि हाजिरी लगाती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक। ओके, इट इज देयर ट्यूटोरियल डे। इट ये, ठीक है, इज है, देयर उनका, ट्यूटोरियल का मतलब है बहसो मुबाहसे का, डे दिन, ये उनके बहसो मुबाहसे का दिन है, ये उनके बहसो मुबाहसे का दिन है। बेटा ट्यूटोरियल ना टीचर की मौजूदगी में स्मॉल ग्रुप्स यानी कि कम बच्चे हों। इट मीन्स a tutorial is a regular meeting in which a tutor यानी कि टीचर and a small group of students यानी कि उसमें कम यानी कि थोड़े स्टूडेंट्स हों, तलबा हों, और वो डिस्कस करते हैं एक सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का एक पार्ट के तौर पर करते हैं, और वो तलबा के कोर्स का हिस्सा होता है जिस टॉपिक को वो क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं और उस पर वो डिस्कशन करते हैं। ट्यूटोरियल, अब बॉक्स में भी है गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल, कि इसका मतलब क्या बेटा? अ ट्यूटोरियल इज अ रेगुलर मीटिंग इन विच अ ट्यूटर एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कस अ सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोर्स। इज इट क्लियर? ये अपने बॉक्स वाला क्वेश्चन भी करना है बेटा। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ठीक है, ये उनके, हम कह सकते हैं ये उनका तदरीसी मुबाहसे यानी कि ट्यूटर यानी कि टीचर की निगरानी में बहसो मुबाहसे का दिन है। ओके, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, द स्टूडेंट्स तलबा, आर है ऑल तमाम, गियर्ड अप का मतलब बेटा रेडी के तैयार है, यानी कि तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार है। ठीक है, तलबा ऑल यानी कि मुकम्मल तौर पर, तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार है। They know what is about to come and they are prepared for it. They know, they mean students, pronoun they know, वो जानते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
व्हाट इज अबाउट टू कम कि क्या होने, इज अबाउट टू कम कि क्या होने वाला है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। एंड दे और वो आर हैं प्रिपेयर्ड तैयार, और वो तैयार हैं फॉर इट इसके लिए, ठीक है। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार है। ओके, शैल वी स्टार्ट, शी आस्क्स पोलाइटली, शैल वी स्टार्ट कि क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें, ठीक है। कुछ ये कौन सा इंटेरोगेटिव, शैल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, शी वो यानी कि उस्तानी, आस्क्स पूछती है, आस्क होता है पूछना, आस्क ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब है शाइस्तगी से, वो शाइस्तगी से पूछते हैं। अब अगेन शाइस्तगी बेटा जिस तरह यहाँ पे इगरली हमने किया था एडवर्ब, तो पोलाइटली भी एडवर्ब है कि वर्ब के मीनिंग में कि वो पूछती हैं शाइस्तगी से, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। शैल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, यस जी हाँ, द स्टूडेंट्स नोड, बेटा नोड का मतलब है मस्बत अंदाज में सर हिलाना, यानी कि सर हिलाना, हाँ में, जी हाँ, यस मीन जी हाँ, द स्टूडेंट्स नोड, जी हाँ तोलबा सर हिलाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तोलबा सर हिलाते हैं। टीचर, ओके, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. Okay, ठीक है। as जैसा कि we have decided, जैसा कि हम फैसला कर चुके हैं, बेटा have के साथ थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, has have के साथ थर्ड फॉर्म। we हम, जैसा कि हम फैसला कर चुके हैं, earlier, earlier का मतलब है पहले, जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक, टॉपिक ऑफ यानी कि मौजू, फॉर टूडेज आज के डिस्कशन कि आज की गुफ्तगू का मौजू इज है द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि मीडिया का किरदार और उसके असरात। ठीक है, जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू यानी कि टॉपिक मीडिया और उसके असरात है। ओके, To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. To start with यानी कि अपनी गुफ्तगू के आगाज में, let me state मुझे कहने दें कि ये मुझे clearly, clearly का मतलब है वाज़े, कि मैं लेट वैसे इजाज़त के मीनिंग में है कि मुझे इजाज़त दें, मी मुझे स्टेट कहने दें क्लियरली वाज़े तौर पर, कि वाज़े कर दूं दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा यानी कि इंतहाई ताकतवर, मूड का मतलब बेटा ज़रिया, ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है अबलाग, के इंतहाई ताकतवर ज़रिया अबलाग है। ओके, अपनी गुफ्तगू के आगाज में ये बात वाज़े कर दूं, अपनी गुफ्तगू के आगाज में, ठीक है बेटा, यानी कि आगाज में ही मुझे ये साफ साफ कहने दें कि अबलाग बाहमी इज़हार का इंतहाई ताकतवर या मुअस्सर जरिया है। फिर सुन ले बेटा, फिर सुन ले गौर से। अपनी गुफ्तगू के आगाज में ये बात वाज़े कर दूं कि मीडिया इंतहाई ताकतवर जरिया अबलाग है। ओके, इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। इट मीन ये यानी कि मीडिया, इट शेयर्स ये बांटता है या पहुंचाता है, न्यूज़ खबरें एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात, ये खबरें और मालूमात पहुंचाता है विद द पीपल, लोगों को, विद द पीपल का मतलब है यानी कि ये लोगों को खबरें और मालूमात पहुंचाता है, ये लोगों को खबरें और मालूमात पहुंचाता है। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट अराउंड अस। समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स यानी कि बाज़ औकात, मीडिया स्प्रेड्स का मतलब है फैलाता है, बाज़ औकात
मीडिया फैलाता है फॉल्स न्यूज, फॉल्स का मतलब है गलत, न्यूज खबरें, गलत खबरें, फॉल्स बेटा एडजेक्टिव है, खबर ये इसकी क्वालिटी है, गलत खबरें फैलाता है बट लेकिन जनरली, जनरली का मतलब है आम तौर पर, मगर आम तौर पर इट ये यानी कि मीडिया इन्फॉर्म्स, इन्फॉर्म्स का मतलब है आगाह रखता है, अस हमें अबाउट के बारे में, द फैक्ट्स हकाइक के बारे में, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द, ओके। बाज औकात मीडिया गलत खबरें फैलाता है लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से बाखबर रखता है, बाखबर रखता, इन्फॉर्म्स यानी कि बाखबर रखता है, आगाह रखता है, ओके। डू यू एग्री, अब टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे डू यू एग्री कि क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। अब बेटा डू है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट ये जो भी है आप एंड पे लिख सकते हो और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज के लेसन में हमने पढ़ा कि क्लास में मीडिया और इसके असरात यानी कि इसके बारे में वो उनकी जो आज की गुफ्तगू का मौजू था वो क्या था, मीडिया और उसके असरात, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा कि मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरे जमात में दाखिल होती हैं, तलबा से सलाम दुआ लेती हैं और हाजिरी लगाती हैं और उनका तदरीसी मुबाहिसे का दिन है, मुकम्मल तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं। तो टीचर ने पूछा क्या हम शुरू करें, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। तमाम तलबा ने सर हिलाया और तमाम तलबा यानी कि सर हिलाते हैं। तो उस्तानी ने क्या कहा, उस्तानी ने कहा ठीक है कि जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू मीडिया का किरदार और उसके असरात है, अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात वाज़ेह कर दूं कि मीडिया इंतहाई ताकतवर ज़रिया अबलाग है, लोगों को ख़बरें और मालूमात पहुँचाता है। बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है लेकिन आमतौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से बाखबर रखता है। तो टीचर तलबा से बोलते हैं क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।